Director Sir, Jashan Gupta, Chairman Sir, Amit Gupta ji, and our beautiful ma'am Saloni ma'am. Also, Suman ma'am, the main beauty man of the school. We are very delighted to welcome Ishan sir and their family, Vrinda ma'am, Raman Tayal sir, Veena ma'am, Bharti ma'am, Dinesh sir, and Sachin Mittal sir. Welcome to Red Rose Modern School annual sector and the Republic Day celebration. परंपरा से प्रगति तक. Today we celebrate the 77th Republic Day, not just as a date on a calendar, but as a living testament to India's evolution. We are the bridge between the ancient chants of Vedas and the silent hum of the supercomputer. Today we weave a tapestry where the threads of the tradition meet the fabric of the technology. Let the symphony It begin. was not just the year we became republic, it was the year we codified our soul. Our constitution is the ultimate parampara, the bedrock of our constitution and our democracy. सदियों की गाथा है, संस्कारों की धार, संस्कृति का गौरव, भारत का श्रृंगार. ये नींव है प्राचीन, पर सोच है नवीन. परंपरा से प्रगति की ओर बढ़ रहा है भारत पर भी. आज का दिन दोहरे उत्सव का है. एक ओर हम अपनी लोकतांत्रिक जड़ें और संविधान का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम अपनी कला और संस्कृति के माध्यम से दिखाएंगे कि कैसे भारत ने अपनी जड़ों को थामे हुए आधुनिकता के शिखर को छू लिया है. Before we celebrate the pragati of our technology, we must pay honor to the parampara in our arts. In our culture, Saraswati Ma is not just the patron of the books, but the architect of the mind. To grace the stage with elegance and devotion, we call upon the students of traditional invocation. They are the keepers of our cultural faith. So ladies and gentlemen, let us immerse ourselves in the serene aura of Ma Saraswati. With these beautiful lines, we like to invite Saraswati Vandana girls. Saraswati
magnetic pace of Pragati. You have set the perfect frequency for the rest of our art and event. Thank you to our performers for reminding us that the Veena and the Veda are just the vital of our identity as the algorithm and the app. Hello. A huge round of applause once again for the magnificent Saraswati Vandana. सरस्वती वंदना की इस पावन प्रस्तुति के बाद अब समय है इस मंच की कमान हमारी नई पीढ़ी के हाथों में सौंपी, जो हमारी परंपरा के मूल्यों को अपनी प्रगति की सोच से जोड़ना जानते हैं। तो अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी हेड गर्ल तनुजा एंड उसकी को होस्ट स्वीटी। प्लीज कम ऑन द स्टेज। इन्हीं दो रंगों में बसा है हमारा हिंदुस्तान। Our theme today, परंपरा से प्रगति तक, is a tribute to our glorious past and an invitation to our digital future. Today, you will see performances that celebrate the soul of our traditions and the spirit of our invention. Let's celebrate the Republic of India and the brilliance of our children. Let the celebration begin. At Red Rose Modern School, we believe that education is not just a center of learning, but a laboratory for life. Under the constant guidance and supervision of your leadership, we have grown into the institution we are today. I now invite our Educational Director for address our guests and share the roadmap of our school's future. Please join us on stage with a warm round of applause. Good morning. Namaskar. On this bright morning, we welcome to celebrate 77th Republic Day. परंपरा से प्रगति तक, ये हमारा विजन हमारे श्री चेयरमैन साहब मिस्टर अमित गुप्ता जी ने देखा था कि हम एक स्कूल को एक ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करें कि हर एक बच्चा अपना यहाँ पे शिक्षा ले पाए। They believe that every child have their own capability, represent himself, and we provide them a state-of-art education to all, and all students to enhance their dreams. It's only starting and much more to done. It's only a starting of the new era revolution and vision with our management. Our aim is not to make school famous, but proud to every Red Rose student that I had passed from the school where we have had a facility to fly and achieve their dreams. Thank you. Thank you so much for your powerful words today. आपका स्पीच सिर्फ एक एड्रेस नहीं बल्कि हम सब के लिए एक मोटिवेशन था। The way so simplified the goals of our institution was amazing. Thank you for being a mentor and guiding us towards excellence. आपका विजन ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। चांद है अधूरा सितारों के बिना, सागर है अधूरा किनारों के बिना, साथ है अधूरा मधुर गानों के बिना, हमारा यह कार्यक्रम है अधूरा आप जैसे प्यारे मेहमानों के बिना। So ladies and gentlemen, it's time to take a trip to the vibrant field of Haryana. But we are not going by bus or plane. We are going there through the tiny steps of our youngest stars. Dressed in beautiful attire, our pre-primary toddlers are ready to show us that you don't need to be told to have a big heart and even bigger moves. Get ready for some thumkas and a lot of smiles. Let us welcome with a huge round of applause. बेटा कशी लागला की पामे कोणी लागती मा हाँ
है घराए पढ़ लेता ईसा के कलेक्टर लागेगा तू बापू बेटा को फौजी बनना फौजी। अच्छा हाँ लाडू बुढ़ी होकर धूके पड़ेगी बेटी बाबू मैं बड़े होकर पहलवान बनूंगी पहलवान, और जब मैं मेडल लेके आऊंगी तो तेरी छाती इतनी चौड़ी हो जाएगी। हाँ रखा गेड़े तू भी बड़ा काफी बड़ा हो गया बाबू मैं तेरी की धड़क जमींदार बनूंगा जमींदार, और जब तू बुढ़ा हो जाएगा इन खेता का और बैड़ा का मैं ही तो ख्याल रखूंगा। अरे शाबाश मेरे बेटे शाबाश जल्दी से बात कर तेरी दोस्ती करा दे The Haryanvi flag would look so adorable. A huge round of applause once more for our three-prime superstars. So ladies and gentlemen, it is time we would like to call Honorable Saloni Ma'am for speech on stage. Very good morning to all the parents and the students present here. The day is bright and sunny today, and today we gather to celebrate Parampara se Pragati. That is, journey from tradition to progress. Our rich heritage and cultural traditions have been the foundation of our society. At Red Rose Modern School, we are committed to honoring our roots while embracing the innovation and change. The Guru Shishya Parampara, an ancient Indian tradition, emphasizes the importance of mentorship, personalized learning and character development. Our school strives to incorporate these timeless values into our modern curriculum, nurturing well-rounded individuals who are well-equipped to succeed in ever-changing world. By blending traditional teachings with contemporary needs, we are creating a learning environment that fosters curiosity, creativity and critical thinking. Our dedicated teachers, students and wisdom and compassion helping them guide into compassionate, thoughtful and responsible citizens. Here
at Ross Model School as we move forward. Let's continue to draw inspiration from our cultural heritage while embracing the opportunities of the modern era. Together, let's shape the bright future of ourselves and our students and our community. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your wonderful words and guidance. So, ladies and gentlemen, it is time to crank up the volume and raise the energy levels. If you have been waiting for some more electric, foot-tapping and vibrant performance of the day, your wait is finally over. Punjab is not just a land, it is a celebration of life. It is about the roaming beats of the dhol, the vibrant colors of the turban and a spirit that knows no bounds. This is dance that represents the heart and soul of the farmers, the warriors and the joyful people of the north. Get ready to witness a whirlwind of power and grace. You don't need to the language and cheer at the top of your lungs. ढोल की थाप हो और भंगड़े का शोर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सोने जैसी रंगत इनकी, चांदी जैसे बाल, पंजाबी डांस दिखाने आई, देखो मचाएंगी धमाल। एक जोरदार तालियों की गूंज के साथ स्वागत करते हैं हमारी इन खूबसूरत कलाकारों का। To the perfect rhythm, you girls brought so much joy to the stage. Thank you for the wonderful glimpse into the heart of Punjab. Truly, balle balle. Now I would like to invite Deepika ma'am. हमारे इस रंगीन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमारे बीच मौजूद कुछ अतिथिगणों का सादर अभिनंदन करना चाहूंगी। महिपाल आर्य सर, भारत गौरव अवार्ड रुद्र राष्ट्रीय कवि गोल्ड मेडलिस्ट, और मास्टर नरेश कुमार सर, समाज सेवी झोंझू कला, और हमारे आदर के सम्मान भावेश सर, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। इसी के साथ मैं हमारे कुछ होनहार विद्यार्थी जो नेशनल लेवल पर गोल्ड जीतकर हमारे स्कूल का जिन्होंने नाम रोशन किया है, उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूंगी और हमारे एजुकेशनल डायरेक्टर गुरप्रीत सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्लीज कम ऑन द स्टेज। मानव सम्मान के योग रेड रोज के डायरेक्टर अमित सिंह गुप्ता और मंच पर सभी बैठे हुए मेरे महानुभाव, माता शक्ति और मेरे परम मित्र अपने चेयरमैन साहब, मैं आपको 5 मिनट 10 सेकंड के लिए एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। मुझे पूरी आशा है कि आप मेरी इस बात को जेब में डाल करके ले जाओगे, क्योंकि जनवरी का महीना भी एक महत्वपूर्ण महीना होता है। 12 जनवरी 1893 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, जिसने 11 सितंबर 1893 में शिकागो अमेरिका के अंदर अपने भारत का गुणगान किया था। 13 जनवरी को लोहड़ी होती है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति और 15 जनवरी को सेना दिवस और 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और आज के दिन 25 जनवरी 1949 को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज के दिन ही 25 जनवरी 1970 को अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जन्म हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 28 जनवरी 1865 को लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या। क्या कहूँ इस देश को, क्या क्या बना सकता हूँ मैं, सच में हिंद की कुंदन बढ़ा सकता हूँ मैं। जानती है दिल वीरुल अपने वतन के लिए, उन शहीदों को भला कैसे बुला सकता हूँ मैं। आजादी का इतिहास स्याही के कारण लाल खून से युग लिख जाते हैं, कायल करते हैं संदीप पत्थर पर हस्ताक्षर, वीर वही तो इसमें आग लगाते हैं। ये दिल उदास होना कैसा, ये बदा होना कैसा, खून का मुकद्दर है साक्ष्य जुदा होना कैसा, मरना न पड़े जिसमें वो जीना कैसा। आता है मरने के
जुबान, पसीना कैसा। हर दर्द की अपनी पहचान होती है, आंसू की अपनी जुबान होती है। गम चला जाता है साए के साथ, खुशियां खुश रंगों की मेहमान होती है। अंकित है इतिहास हमारा त्याग तुरंत बलिदानों से, और परिचित नहीं है जग में आर्य संतानों से। देश की आजादी है जिन वीरों की अमर निशानी, आम मिलकर याद करे हम उनकी अमर कुर्बानी। ये दरिया है माँ हमारी, हर शिकन मंदिर हमारा, हर के प्राणों में बिछा है देश का कंकर हमारा। माँ मुझे शक्ति दे, मेरा खून भी कुछ काम आए, जब लिखे इतिहास देश का, करे नाम का नाम आए। बर्बाद समन करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर सांस में उल्लू बैठा है, अंजामी गुलिस्तान क्या होगा। बदतमीजी कर रहे हैं आज बहुरे भी तमन में, साथियों अंधी उठाने का जमाना आ गया है। सर फिरोची की तमन्ना तू तो पैदा किया, नौजवानों तुमने ही तो गदर पैदा किया। जान की बाजी लगा कर ली आजादी ए वतन, फांसी के फंदे को तुम कर घर में जिक्र पैदा किया। क्यों ना मैं इस मिट्टी का लगाऊं तिलक में, जिस जमीन नबीर भगत सिंह साबिर पैदा किया। इसके साथ पाकिस्तान ने 3 बार हमला किया और 3 समझौते हुए। पहला हमला 2 नवंबर 1945 को, जिसमें मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला मरणोपरांत पूर्वी तक मिला। दूसरा हमला 1 सितंबर से 23 सितंबर 1965 को, 6 सितंबर 1965 को लाललीला मैदान में ये कहा था कि दरा उगल रही है समृद्धि के सरपुरतार से, सुना तुमने भूमि है किसान के कलाब से। कौन भूल सकेगा भला मोर इकतदार को, जिए तो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, मरे तो देश के लिए प्रणाम उस जवान को। और तीसरा हमला 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 में, इसमें भारतीय सेना ने ढाका के अंदर 93,000 सैनिक युद्धबंदी बनाए थे और 3 समझौते हो चुके हैं। पहला समझौता 26 अक्टूबर 1948 को, दूसरा समझौता 10 फरवरी 1966 को और तीसरा समझौता 3 जुलाई 1972 को। लेकिन मैं पाकिस्तान को यह कहना चाहता हूं कि अब की बार यदि हमला किया तो हम समझौता नहीं करेंगे। जब हुई अगर इस बार तो समझौता बात नहीं होगा। खून खोल गया है बात का, अब हमला बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत उठ गए हैं समझौते, लेकिन केवल बात नहीं होगा। कश्मीर तो होगा भारत का, लाहौर का नाम नहीं होगा। ऐसी धूल चटाएंगे दुश्मन को, फिर सीमा का छूने का साथ नहीं होगा। दिल्ली चमकेगी नक्शे पर इस्लामाबाद नहीं होगा। तेरे नाम बगियानों में अमेरिका भी साथ नहीं होगा। जन्नत बन जाएगा कश्मीर, फिर आतंकवाद का नाम नहीं होगा। मुस्कुरा उठेगी भाजपा, तेरा खौफ नहीं होगा। ये वही बारूद का सपना है, ये साकार जरूर होगा। आएगी मौत एक दिन जानते हैं हम, वतन के लिए आए हैं फिर किस बात का है गम। 1-2 साल की बात को छोड़िए, सैकड़ों कुर्बानियां है वतन के लिए कम। जब तक लाली हमारे खून के खतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में है। मैं भी किसी मिट्टी का बनाई है मेरी पहचान, मेरे कफन के किसी कोने पर लिख दे रहा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for your wonderful words or for beautiful poem. Now I would like to request now Nisha from 7th class. Anita from 9th class. अब बारी है हमारे स्टूडेंट अमित को बुलाने की, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करके एक ब्रेकर सिस्टम की इन्वेंशन की है, एक मॉडल को इन्वेंट किया है। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अमित ऑन द स्टेज। I request all the guests and the
लीडरशिप का जो हमें हर कदम पर गाइड करती है। ही इज अ पर्सन हु लीड्स बाय एग्जाम्पल, जिनकी मेहनत और डेडिकेशन हम सब के लिए एक मिसाल है। उनके गाइडेंस में इस इंस्टीट्यूशन ने न सिर्फ नए मुकाम हासिल किए हैं, बल्कि हमने सीखा है कि चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कैसे बदलना है। इट इज अ मोमेंट of great pride and honor for me to invite our respected director Jashan sir on stage. Sir, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप मंच पर आए और अपने words of wisdom से हम सबका उत्साह बढ़ाएं. Please a huge round of applause for our director sir. Honorable guests and my dedicated faculty, I extend my heartful greetings to all present here on the auspicious occasion of Republic Day. It is a moment of immense honor for me to stand before you on this occasion. Under the supervision and legacy and vision of our late Mr. Ramesh Chandra Gupta ji and guidance and leadership of our chairman Mr. Amit Gupta. On a personal note, though I was raised in the vibrant lanes of Delhi, today my dreams, my vision and my heart are deeply connected to the soil, the land of Shishala, Charkhi Dadri. For me, Red Rose Modern is not merely an institution, it is a ray of hope, revolution and and a form to empower every child from surrounding villages to build their own identity and their parent proud. To my dear students, you are not so small, so don't let be your dreams small. Believe in yourselves. On this day, let us take a pledge to make education a worship, our nation a source of pride. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Sir, heartiest thanks to you for making the annual day so special. आपने जो विजन शेयर किया वो हम सब के लिए बहुत इंस्पायरिंग था. Thank you for always trusting us and leading us from the firm. Proud to be a part of your team. Regards, Jashan sir. नन्हे हाथों में तिरंगा है, आंखों में है आस. नन्हे हाथों में तिरंगा है, आंखों में है आस. भारत माता के चरणों में है अपना हर विश्वास, अपना हर विश्वास. The tiny feet are maybe small, but their love for nation is big. Now we invite our youngest performers to this stage to celebrate the spirit of patriotism through dance. Please a huge round of applause. बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा मौजूद होंगे. तब तक के लिए हम गानों के साथ अपना मनोरंजन जारी रखेंगे. थैंक यू सो मच.
कुछ तू, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, तू मेरा अभिमान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए। जय हिंद, जय भारत। जितनी प्यारी परफॉर्मेंस थी उसके हिसाब से तालियां बंद होनी नहीं चाहिए। आपकी तालियां ही हमारा प्रोत्साहन है। अब हमारे आए हुए सम्मान किए हुए अतिथिगण में से एक हमारी प्यारी सी छोटी सी बच्ची जिसका नाम है नैन्सी, वो अपनी प्रतिभा का कौशल आपके सामने दिखाना चाहती है। नैन्सी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Flag rises high, let it be symbol of our soaring aspiration and our undying love for the motherland. Now, I would like to request all of you to stand for the national flag hosting. आप सभी से मेरी गुजारिश है कि एक बार हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के फहराने के लिए आप सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उसके सम्मान में डॉक्टर पवन सर को ध्वजारोहण के लिए स्टेज पर बुलाना चाहिए। एस्कॉर्ट करते हुए लेकर आ रहे हैं। प्लीज जोरदार तालियों से उनका प्रोत्साहन बढ़े। मुकेश भाई पीछे आ गया ना इनका। Himalaya,
brilliance, hope and innovation. To breathe these two words, we move towards the ritual of a Deep Prajwalan. It is a perfect metaphor for our theme, the brass lamp is our parampara, the solid foundation. The flame is our pragati, always reaching upward, evolving. We humbly invite our chief guest, Honorable Chairperson Sir, Iconic Director Sir and Visionary Educational Director Sir and other present dignitaries to come on the stage and join us.
एनवायरमेंट। किसी भी संस्था की नींव उसके शिक्षक होते हैं और उस नींव को मजबूती देते हैं एक कुशल नेता। To lead us through the journey of the past year and share the vision of our future, we need someone who leads with both heart and mind. उनकी बातों में एक सबक होता है और उनके व्यक्तित्व में एक मिसाल। I request our beloved principal ma'am to kindly grace the stage and enlighten us with her annual report and speech. Please welcome her with a big round of applause. आए हुए सभी मंचासीन सदस्यगण और हमारे चेयरमैन जो हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी कामयाबी की दिशा दिखाने के लिए आए हैं, और सभी पेरेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, हमारे मैनेजमेंट के सभी मेंबर्स, मैं सभी का यहाँ पे स्वागत करती हूँ और बहुत दिल की गहराइयों से उनका यहाँ आने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत ज्यादा नतमस्तक हूँ। एज ए प्रधानाचार्य मैंने यहाँ जब जुलाई में काम संभाला था तो मैंने यहाँ देखा कि बच्चों के पास बहुत सारे सपने हैं, इतने सपने हैं उनके कि उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था कि किस तरह से उनके सपनों को हम पूरा करें। और जब मैंने देखा और मैंने चेयरमैन सर से बात करी कि सर यहाँ पे हमें एक परंपरागत शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा की भी बहुत जरूरत है, तो उन्होंने इसके लिए हमें काफी इंस्ट्रूमेंट्स दिए। जैसे हर क्लास में उन्होंने हमें टच चैनल वाले कैमरे लगवा के दिए, स्क्रीन लगवा के दिए, और जो भी बच्चा आगे बढ़ना चाहता है उसको हर संभव प्रयास किया कि कुछ ना कुछ उनको सिखाया जाए और उनकी प्रतिभा को पहचाना जाए। अब बात आती है हमारी आजादी की। हमारी आजादी जो है 15 अगस्त को हुई थी और हमारा संविधान 26 को लिखा गया था। संविधान की पूर्व संध्या पर मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और अब मैं सिर्फ है ना बात करना चाहूंगी कि हमने पिछले साल क्या किया। पिछले साल जब हमने ज्वाइन किया तो यहाँ बच्चों की आंखों में इतने सपने थे, वो बहुत आगे बढ़ना चाहते थे। उनको हमने जिस दिशा में वो जाना चाहते थे उससे रिलेटेड उनकी करियर काउंसलिंग करवाई और हर बच्चे को ये बताया गया कि तुम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चल करके अपने जो सपने हैं उनको पूरा कर सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए ठीक रहेगा, किस तरह से उनको पढ़ाई करनी है, किस तरह से उनको अपना समय का प्रबंधन करना है। ये सभी चीज उनको विशेषज्ञों द्वारा बताई गई और उसका परिणाम हमें वक्त वक्त पे जो यूनिट टेस्ट हुए, हमारे हाफिजली एग्जाम हुए, उसमें हमने बहुत अच्छी सफलता मिली कि हमारे बच्चे आज लगभग 80% पिछले साल से 80% ऊपर है नंबर में, मार्किंग में, कॉन्फिडेंस में, बोलने में। और शायद आज आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे बच्चे इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, उनको कोई लैंग्वेज की दिक्कत नहीं है, उनके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाया जा रहा है यहाँ टीचर्स। और जो छोटे बच्चों की बात आती है तो छोटे बच्चों में हमारे यहाँ जो शिक्षा है वो बहुत मतलब एक इजी वे में हम बच्चों को देते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हैं, ना कि उनको कोई चीज बार बार रटवाते हैं। उनके दिमाग को यूज करते हैं कि वो अपने दिमाग से उस चीज को बताएं। प्रैक्टिकल एजुकेशन को हम बढ़ावा देते हैं कि हम बच्चे को हमें कोई चीज क्रैमिंग नहीं करवानी है, बच्चे के दिमाग को यूज करना है कि ए फॉर सिर्फ एप्पल ही नहीं होता बेटा, और भी बहुत सारी चीज होती है। क्योंकि जो आज का जमाना आ रहा है, आगे आगे AI का जमाना आ रहा है, तकनीकी शिक्षा का जमाना आ रहा है। अगर इस टाइम हम बच्चों को रटवा के कोई चीज करवाएंगे तो शायद हमें सफलता नहीं मिलेगी। हम एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक
या बहुत अच्छे तकनीकी विशेषज्ञ या कोई IIT इंजीनियर या किसी भी क्षेत्र में अगर हमें अपने बच्चों को ले जाना है तो उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। इस सिलसिले में आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। एक राजा था, उसने 2 चित्रकार बुलाए और उन्होंने कहा कि जो जिसकी चित्रकारी सबसे अच्छी होगी उसको मैं 100 सोने की मोहरें दूंगा। तो एक चित्रकार तो अपना पहले दिन से ही चित्रकारी करने में लग गया और जो दूसरा चित्रकार था, जो उसके सामने की दीवार थी ना, उसको घिसता रहा। लास्ट मोमेंट तक उसने उस पर कोई चित्रकारी नहीं करी, लेकिन उस दीवार को उसने इतना चिकना बना दिया कि जो पीछे की चित्रकारी थी ना, वो उसकी दीवार से दिख रही थी। तो सब लोगों ने पूछा ये क्या है? बोले ये एक अद्भुत कला है, मुझे कोई चीज की कॉपी नहीं करनी है, जो उन्होंने बनाया है वो आप मेरी दीवार से देखिए। तो उसी तरह से हम बच्चों के दिमाग को देखते हैं कि उसका दिमाग किस चीज में चल रहा है और कैसे वो खेलेगा, कैसे वो पढ़ेगा। जरूरी नहीं है कि वो कॉपी के थ्रू ही पढ़े, हो सकता है उसका दीवार पे कुछ लिखने का मन हो सकता है उसका बेंच पे कुछ लिखने का मन हो। तो हम उसी हिसाब से उस बच्चे को टैकल करते हैं ताकि उसको स्कूल ना लगे, एक प्ले हाउस लगे। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन देते हैं। बड़े बच्चों के लिए अगर उनको किसी टाइम भी, हर टीचर ने उनको फ्री कर रखा है, किसी टाइम कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं है, तुम फोन करो, टीचर से वीडियो कॉल करो और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। हर टीचर को अपने अपने सब्जेक्ट की इतनी चिंता रहती है कि वो मुझे आकर के कहते रहते हैं, मैम प्लीज मुझे आज एक्स्ट्रा पीरियड दे दो, मेरे बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। रियली ये सब देख करके मुझे इतना अच्छा लगता है कि पता नहीं हम यहाँ के बच्चों को कितना कुछ दे दे। इतनी सशक्त टीम मुझे मिली हुई है जो वक्त वक्त पे मेरा सहयोग करती है और मतलब केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, इनके फॉर्मूलों को इतनी इजी तरीके से बच्चों को याद कराती है कि बच्चों को पढ़ाई में मजा आने लग गया है। और सारे पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि 80% हम लगभग स्कूल से देंगे आपके बच्चे को, 20% मेहनत आप लोगों की चाहिए। आप लोग अपने बच्चों की आंखों में झांकिए, आप उनको उनकी प्रतिभा को पढ़िए कि वो बच्चा क्या चाहता है। मैम मोबाइल लेने से कोई बच्चा बिगड़ नहीं जाता है, हो सकता है मोबाइल लेके वो बच्चा कोई एजुकेशनल चीज ही देख रहा हो। सिर्फ हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा किस पथ पे जा रहा है, किस रास्ते पे जा रहा है, क्या बनना चाहता है। हर क्षेत्र में बहुत सारे अवसर है, किसी भी क्षेत्र में बच्चे का इंटरेस्ट है तो उस क्षेत्र को निखारे और उसको पहचाने। और जब भी हम पेरेंट्स मीटिंग करते हैं समय समय पर हमें भी बताएं आकर के कि आप लोग अपने बच्चे में क्या कमी देख रहे हैं और क्या और करना चाहते हैं। मैं यहाँ कोई लिखी हुई बातें नहीं बोल रही हूँ, जो मेरे दिल में बात है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ और जो मैं यहाँ करना चाहती हूँ वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। तो हम लोगों की बहुत इच्छा है कि यहाँ से बच्चे पता नहीं कहाँ गेमों में निकले, खेलों में निकले और बहुत सारी ऊंचाइयों पे छुए। हर क्षण हर पल हम और हमारी पूरी टीम बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए तत्पर है, तैयार है। आप सब अपना सहयोग दीजिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू। Thank you so much ma'am for those incredibly motivating words. आपकी बातों ने ना सिर्फ हमें प्रेरित किया है बल्कि हमें एक नई दिशा भी दिखाई है। Your vision is the guiding light that keeps Red Rose Model School moving forward. Thank you for being our constant support and mentor. कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और अपनी बातों से समा बांधने के लिए अब बिना किसी देरी के मैं मंच पे हेड बॉय जय और उनके को होस्ट मासूम को आमंत्रित करती हूँ। They say teamwork makes the dream work, and our next two hosts are the perfect examples of that. To reveal what's hidden in the next chapter,
Let's bring out them. Over to you both. Thank you so much, dear friend, for handing over the stage to us. We are delighted to host this program with all our hearts. Showing our gratitude, we are obliged for the opportunity to be a part of this event. Let us begin by introducing ourselves. I am Jay, and it is my pleasure to be your host for today. And I am Masoom, joining you as the co-host for this wonderful event. हरियाणा की माटी में सिर्फ जोश और उमंग ही नहीं है, बल्कि नारी के संघर्ष, त्याग और आत्मसम्मान की कहानियां भी बसती हैं। बेटी जब मायके से ससुराल जाती है, तो सिर्फ घर नहीं बदलता, उसकी जिम्मेदारियां, सपने और पूरा संसार बदल जाता है। इन्हीं भावनाओं, रिश्तों और जीवन के नए रंगों को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रही हैं हमारी बालिकाएं। We warmly welcome our young and talented performers to the stage.